Hello everyone, welcome to this session of the CIB special classes. So today I'm going to discuss a very important chapter of your BFM subject, that is documentary letter of credit. This is a module A chapter 4 and this is a part 3 of this chapter. पार्ट वन और पार्ट टू में हमने डिस्कस करा था व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द लेटर ऑफ क्रेडिट लाइक हाउ इट फंक्शंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट ऑल वी डिस्कस इन अ वेरी simplified manner, right? So in this session we are going to understand about the very important rule regarding the letter of credit, that is UCPDC. Okay, so we are going to understand about the UCPDC and the grouping of the articles. In the next session we will understand like what every article states. Okay, so let's start today's session. I hope everyone has joined us now, right? So understand, when we talk about the documentary letter of credit, as we understood, just a minute. Okay, so a very important thing we have to understand about the UCPDC. What is the full form of the UCPDC? That is a Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, एंड दैट इज़ नोन एज अ UCPDC. एक बहुत ही सिंपल टर्म में मैं कुछ इंपॉर्टेंट की जो आपकी कीज पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूँगा. एंड द सेम पॉइंट यू हैव टू जस्ट नोट डाउन फॉर दिस चैप्टर. ओके, सो एक बहुत ही सिंपल टर्म में मैं बोलूँ तो आईसीसी का फुल फॉर्म दैट इज़ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स actually first time framed the UCPDC, that is the rule regarding your letter of credit. Okay, so when we talk about the ICC, you can understand this is a international chamber of commerce. और उसके बाद जब पहली बार फ्रेम किया था आईसीसी ने, उसके बाद ये 6 टाइम जो है वो रिवाइज हो चुका है. और इस समय का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो रूल हम बात कर रहे हैं वो है UCP 600. ओके, राइट? सो इन द प्रीवियस, अगर मैं अर्ली वर्जन की बात करूं, दैट इज योर UCP 500, जो इस समय जो रनिंग है, जो इस समय रनिंग, एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ लेटेस्ट वर्जन फॉर योर रूल्स regarding your letter of credit, then you will say that is a UCP 600. The very important thing, that what is the full form of the UCPDC, then you will say that is a Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, right? सो आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, आईसीसी का हेड क्वार्टर है पेरिस में. तो सबसे पहले आईसीसी ने यूसीपीडीसी रूल्स जो थे वो फ्रेम करे थे. उसके बाद से ये 6 बार रिवाइज हुआ है. और अब जो करेंटली जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज UCP 600. और ये कब से जो है इफेक्टिव हुआ था, दैट इज जस्ट इफेक्टिव फ्रॉम द 1 July 2007. Okay, this is a very important thing to understand. So after getting approval from the banking commission in 2003, banking commission से 2003 में अप्रूवल लेने के बाद आईसीसी ने एक टास्क फोर्स जो थी अपॉइंट करी थी फॉर द रिवीजन ऑफ द UCP 500. ओके, और वो रिवाइज होके बना है UCP 600. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम जिस टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, जो आईसीसी ने जो है वो बनाई थी, अपॉइंट करी थी फॉर द रिवीजन ऑफ द UCP 500. एंड दैट एक्चुअली द टास्क फोर्स प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फॉर द न्यू UCP, and that drafting group constituted members from the 9 countries which has which had the 15 meetings before the draft was finalized. Okay, so अगर हम एक important key point की बात करें तो ये जो टास्क फोर्स थी उसने जो ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया था, दैट ड्राफ्ट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स फ्रॉम द 9 countries. ओके, that actually constituted like from the nine countries. Okay, so now you can understand, now again a very important thing to understand about the term, that is a dog tax. Okay, now what is a dog tax? You have to understand dog tax is a method. Okay, डॉग डेक्स इज अ मेथड फॉर व्हाट. सपोज दैट कि हम जो भी ट्रेड फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इज जस्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, फॉर द ट्रेड फाइनेंस. सो अब ट्रेड फाइनेंस पे ऑब्वियस सी बात है डिस्प्यूट्स भी होंगे, राइट? सो उस डिस्प्यूट्स को हैंडल कैसे होगा, वो डिस्प्यूट हैंडल कैसे होंगे? तो डॉग डेक्स इज अ मैथड. Okay, and this is a method which is known as a ICC's. This is a method which is known as a ICC's documentary. This is known as a ICC's documentary credit disputes resolution
एक्सपर्टाइज। ओके, सो इसको डॉक डेस्क को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आईसीसीज डॉक्यूमेंट्री केडर डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन एक्सपर्टाइज। ओके, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डॉक डेस्क, बिकॉज इन योर बुक इट इज नॉट मेंशन्ड, in your book it is only mentioned that is a doc desk is known as a ICC's documentary caded dispute resolution expertise. When we talk about what is the full form of that, just you can also understand, because here we are talking about like letter of caded, that's why we have just mentioned here caded. Otherwise you can also just write here that is a documentary instruments. Okay, सो इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम लेटर ऑफ केडेट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे केडेट लिख दिया। और इस चैप्टर में हम जब भी केडेट की सिर्फ बात करेंगे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द लेटर ऑफ केडेट। ओके, सो द सेम थिंग, अगर मैं डॉक डेस्क के फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक डेस्क का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सपर्टाइज। दिस इज नोन एज अ डॉक डेस्क फुल फॉर्म। और क्योंकि हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करें तो वी कैन अंडरस्टैंड एज अ केडेट। ओके, एंड केडेट दैट मीन्स लेटर ऑफ केडेट। So documentary cadet, that itself meaning the letter of cadet. Okay, so documentary cadet dispute resolution expertise, this is known as the ICCs. Okay, so now you can understand ki when dispute related to trade finance instruments occur, you can understand it is just a specialized method that is confidential. अगर डॉक डेस्क की बात करें तो ये एक कॉन्फिडेंशियल मेथड है, एक क्विक मेथड है, एज वेल एज अ कॉस्ट इफेक्टिव मैथड है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर दैट जब भी हम बात करेंगे व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द यूसीपीडीसी, यू विल से दैट इज अ रूल्स। और जब भी हम बात करेंगे व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डॉक डेस्क, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ मैथड फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड फाइनेंस। ओके, दैट्स इट, right? I hope this thing is clear to everyone. Now understand, I'm just erasing all the stuff from here. Now understand, just screenshot that. Okay, I'm just erasing all the stuff from here. I hope this thing is clear to everyone. Okay, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पढ़ने वो से इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। नाउ अंडरस्टैंड कि जब हम UCP 600 की बात करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड UCP 600 हैविंग ओनली द 39 आर्टिकल्स। UCP 600 जो रूल्स हैं रिगार्डिंग द ट्रेड फाइनेंस, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, हैविंग ओनली 39 आर्टिकल्स। जो अर्लियर वर्जन की हम बात करते हैं UCP 500 की, उसमें जो थे वो 49 आर्टिकल्स थे। ओके, दैट मीन्स कुछ आर्टिकल जो थे वो डिलीट हो गए, कुछ आर्टिकल जो थे वो मर्ज हो गए। दैट मीन्स नाउ UCP 600 इज ओनली हैविंग द 39 आर्टिकल्स। और अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज अ ग्रुपिंग ऑफ आर्टिकल्स। ओके, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ आर्टिकल्स। नाउ अंडरस्टैंड कि अब UCP 600 जो एक आर्टिकल हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि अगर हम कि किस ग्रुप, अगर मैं बात करूं किस नंबर से किस नंबर तक के हमने ग्रुप बनाए हैं कि उसमें किस चीज़ की बात कही गई है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आर्टिकल 1 to 5. Okay, so UCP 600 having the 39 articles, you can understand it is started from the is article 1. So article 1 to 5 that actually explains, that actually state about the definitions, interpretations, independence of the letter of credit. And that is a very obvious to understand कि जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमेशा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, उसके रूल से स्टार्ट होता है, उसके प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है। ओके, सो आर्टिकल 1 to 5 दैट एक्चुअली स्टेट अबाउट द डेफिनेशंस, इंटरप्रिटेशंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। Now understand a very important thing, that what we understand by the independence of the letter of credit. What we understand by the independence of the letter of credit, that is a very important thing to understand. That what we understand by the independence of the letter of credit, you can understand the issuing bank is only concerned with the terms and conditions of the letter of credit. What it means that, because you know that जब भी हम issuing bank की बात करते हैं तो what we understand by the issuing bank is actually open the letter of credit. तो issuing bank क्या करता है, issuing bank open करता है क्या, letter of credit को open करता है। now understand कि independence of the letter of credit का मतलब ये है कि issuing bank को other matters जो हैं, जितने भी other matters हैं कि like जो buyers ने जो सामान order करा,
ओके, सपोज दैट सेलर ने जो शिपमेंट करा वो कुछ खराब प्रोडक्ट आ गए, तो उससे इशूइंग बैंक को कोई मतलब नहीं है, राइट। सो जितने भी अदर्स मैटर्स हैं उससे इशूइंग बैंक को कोई मतलब नहीं। इशूइंग बैंक को सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेलर है, सेलर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेलर ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने प्रेजेंट करे, दैट मीन्स इशूइंग बैंक को उसको ऑनर करना ही पड़ेगा। issuing bank must honor his request, like must honor the seller's or beneficiary request for payment. Okay, so you can understand the issuing bank is only concerned with the terms and conditions of the letter of credit and documents presented by the beneficiary. If the beneficiary presents document that comply with the terms and conditions of the letter of credit, suppose a beneficiary ने जो भी terms and conditions के according जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे हैं, दैट मीन्स इशूइंग बैंक को उसकी रिक्वेस्ट को ऑनर करना ही पड़ेगा। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ अंडरस्टैंड the article 6 to 10, what we understand by the article 6 to 10, what it state। देखो अब लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन हमने समझ ली कि व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या स्टेट करता है। अब हम जो ग्रुप बनाया है वो हमने बनाया आर्टिकल 6 to 10, जहाँ पे हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, एक्सपायरी डेट एंड प्लेस, क्योंकि देखो हर इंस्ट्रूमेंट की एक एक्सपायरी डेट होती है। ओके, एक्सपायरी डेट की, प्लेस की, ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशूइंग बैंक, क्योंकि इशूइंग बैंक इसको ओपन करती है तो उसके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एडवाइजिंग क्रेडिट्स एंड अमेंडमेंट्स। ओके, सम अमेंडमेंट्स वी एक्चुअली टॉक अबाउट। So what you understand by the availability, you can understand availability, that means a letter of credit must state that it is available by side payment or deferred payment or acceptance or negotiation. That means you can understand, in the previous session we actually understood about that what we understand by the side payment, what we understand by the deferred payment। side मतलब कि जैसे ही सेलर ने जो है वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे, जैसे ही सेलर ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे वैसे ही उसको पेमेंट मिल जाएगा। ओके, दैट इज नोन एज अ साइड पेमेंट। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड दैट मीन्स कि जो शिपमेंट के कुछ दिन बाद उसको जो है वो सेलर को पैसा मिलेगा। ओके, दैट इज नोन एज अ डिफर्ड पेमेंट। ओके, सो अवेलेबिलिटी दैट क्लियर मीन्स दैट मस्ट स्टेट वेदर इट इज अवेलेबल बाय द साइड पेमेंट और डिफर्ड पेमेंट, that is known as the availability। okay, expiry date and place, what the different obligations of the issuing bank, that is stated by the article 6 to 10। हम एक एक आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल अंडरस्टैंड इन दिस सेशन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मेंशन इन योर मैकमिलन बुक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, सो आई एम जस्ट कवरिंग दैट। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड what is stated by the article 11 to 17। ओके, तो अब हमने बात कर ली कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, यू कैन अंडरस्टैंड जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी क्या डेफिनेशंस थी, वो क्या उसमें क्या स्टेट होना चाहिए, उसके मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सेलर प्रेजेंट करेगा उसको एग्जामिन करने के अबाउट दैट स्टेट बाय द आर्टिकल 11 to 17। ओके, सो एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनेटेड बैंक रिम्बर्समेंट अरेंजमेंट, that all state by the article 11 to 17। okay, so that is also very important। now understand ki article 18 that relate by the commercial invoice, you can understand ki what we understand by the nominated bank, that is nominated by the issuing bank, that actually you can understand that actually belongs or that actually from the seller's country usually। okay, so nominated bank मतलब that commercial invoice, you can understand कि this is all about that जो भी invoice का जो amount है, okay, उसके regarding जो है वो article 18 state करता है, right। आर्टिकल 19 to 17 दैट रिलेट्स टू द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो भी शिपमेंट करा है सेलर ने इन द कंट्री ऑफ द बायर, इन द कंट्री ऑफ द इम्पोर्टर, सो दैट एक्चुअली स्टेट बाय द आर्टिकल 19 to 17। अगर मैं एक मोटे मोटे शब्दों में बोलूँ दैट आर्टिकल 18 to 27 दैट स्टेट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स ओनली। ओके, sorry, article 18 to 28, because article 28 also state about the insurance documents। okay,
सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूँ तो 1 to 5 यू विल से दैट इज अबाउट द डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। आर्टिकल 6 to 10 दैट स्टेट अबाउट दैट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। आर्टिकल 11 to 17 में बोलूँ तो डॉक्यूमेंट को किस तरह, डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन किस तरह होना चाहिए, ओके, एंड क्या क्या साइकिल है, क्या साइकिल होनी चाहिए, ओके। सो दैट स्टेट बाय द आर्टिकल 11 to 17। फिर मैं बात करूं अगर आर्टिकल 18 to 28, दैट ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, ओके, एंड दैट डॉक्यूमेंट दैट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द कॉमर्शियल इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ओके। सो अगर मैं बोलूं आर्टिकल 18 itself इज अ कॉमर्शियल इनवॉइस, आर्टिकल 19 to 27 दैट अबाउट द ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ओके। After that, you can understand article 29 to 33, that is about the extension, tolerance, partial and installment drawings and hours of presentation. That means that article 29 to 33, that is mainly related to about the banking, like banking in the case is suppose that कि सेलर को अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने की जो डेट थी, उस डेट में बैंक्स के क्या है, हॉलीडेज है, ओके, या बैंक की छुट्टी है। तो what is the like what will be the case for this, okay? So you can understand about the extension, tolerance, partial and installment drawings and hours of presentation, कि प्रेजेंटेशन के भी क्या आवर्स होने चाहिए, दैट स्टेट बाय द आर्टिकल 29 to 33, ओके। ओके, व्हाट वी अंडरस्टैंड विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के अबाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। इट एक्चुअली क्लैरिफाइज, सपोज इट कि बैंक उस दिन क्लोज है जिस दिन सेलर को अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना था। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि this article actually clarifies that such extension of the time of the presentation of the document will have no influence on the date of shipment. That means shipment की date पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन अगर एक्सटेंड होता है तो उसका शिपमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। उसका डेट ऑफ शिपमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज एक्चुअली स्टेट बाय द आर्टिकल आर्टिकल 29 to 33, दैट इज अबाउट द एक्सटेंशन टॉलरेंस। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सटेंशन, दैट आई एक्सप्लेन्ड, ओके। Article 34 to 37, that about the disclaimers, okay, and Article 38 to 39, that is the last. You can understand about the transferability and assignment of the proceeds, okay. So that transferable credit and assignment, that is about the Article 38 to 39, that is the last article. So I hope you have just remembered all the article, all the group of the article, and it is a very easy to remember also, right? दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन। आफ्टर दैट लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट को किस तरह से एग्जामिन करना चाहिए। आर्टिकल 18, दैट इज अबाउट द कॉमर्शियल इनवॉइस, यू कैन जस्ट लेट इट टू द डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 18, आर्टिकल कॉमर्शियल इनवॉइस। 19 to 27, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, बैंक में किस बैंक के आर्स क्या है, बैंक की डे, लाइक बैंक अगर बंद है तो फिर डॉक्यूमेंट का किस तरह से प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज अबाउट द आर्टिकल 29 to 33, and 34 to 37, that is about the disclaimers, and 38 to 39, that is about the transferable credit and assignment, okay. So this is a very important to understand. I hope this thing is clear to everyone. So thank you everyone for joining me in this session. I hope this session is useful for everyone. In the next session we will understand a very important thing, that what every article state, and in a very simplified way I'm just going to elaborate you like in the previous session I just did that, okay. So thank you everyone for joining me in this session. I hope you all just understood the whatever I just delivered here.